स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी में जगमगाया वैदिक एकता का अद्भुत उत्सव। आर्य समाज के 150 वर्ष और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर विश्व भर से आए प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा, वेद ही मानवता का सनातन संविधान है। दक्षिण अफ्रीका से स्वामी वेदानंद, ऑस्ट्रेलिया से योगेश आर्य और अमेरिका से भुवनेश खोसला जैसे वैदिक ध्वजवाहक एक मंच पर जुटे मानव कल्याण का संदेश देने। वेदों की ओर लौटो, यही है आने वाले युग का आह्वान। योगेश खोसला है। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका का करंटली सर्विंग एज प्रेसिडेंट देयर। मेरे राइट पे स्वामी वेदानंद जी सरस्वती जी, he is leading the delegation from South Africa along with Pandit Kiran Sadhguru ji. He is the president of Arya Pratik Sabha South Africa, and to my very right is Shri Yogesh Arya ji. He is leading the group from Arya Pratik Sabha Australia. Thank you. Everyone, namaste. Good afternoon. I am Kiran Sadhguru, Pandit Kiran Sadhguru, President of Arya Samaj South Africa, or Arya Pratinidhi Sabha South Africa. We are 100 years old this year, but our affiliates, the oldest affiliate that we have is 116 years old. We are concentrated throughout South Africa. The main center is based in KwaZulu-Natal, Durban, which is our headquarters. From there, we move out to the different parts of South Africa. We are centered in the Midlands region of KwaZulu-Natal. We've gone as far as Gauteng, which is the business hub of South Africa, moved through to the southern part of Africa, which is Cape Town. We have a chapter there. So we are centered in different parts of the country. Historically, Arya Samaj has been responsible for language upliftment. We've had a historical perspective in terms of maintaining and running many Hindi schools. In fact, the radio station, the Hindi Shiksha Sangh is running, was co-created by the Arya Samaj South Africa. We have we are involved in the creation of one of the largest Anath ashrams and old age homes in the southern hemisphere, and that is the Aryan Benevolent Home in Durban. And we have an orphanage that is there, which houses over 90 people, 90 youngsters. And we also have another orphanage in Pietermaritzburg, which is run by different committees, but originally started and they are now subsidized by the state. When it comes to present day activities, we are very, very well linked to the political situation in South Africa. We work with the current government for various and many projects, social upliftment programs like gender-based violence, 16 days of activism. All of these things we participate in. We've just set up and we are setting up different chairs to deal with social upliftment programs, as I said, with gender-based violence. मैं बोलता हूँ और आपको अगर बीच में इंग्लिश निकल आए तो कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बोलता हूँ। देखिए, आर्य समाज की मूवमेंट अच्छे से डिस्क्राइब कर दी स्वामी जी ने, और आर्य समाज की जो भूमिका रही है वो इसके इंसेप्शन पे जब से स्टार्ट हुआ है, इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रेयर एंड संडे सत्संग ओनली. वी वर्क ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमैनिटी. और हिंदी में बोलूँ तो हमारे वेदों का जो मूल है मनुर्भव, कि मनुष्य बनो, और इसी के अंतर्गत मानव सेवा हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा है. क्योंकि जब हमारा उद्देश्य मनुर्भव है, मनुष्य बनने का है, तो मनुष्य बनने के प्रोसेस में जो जो बाधा आती है, वेदर इट्स सोशल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, अनएजुकेशन, या फिर जो भी डोगमास हैं, जो भी इलॉजिकल प्रिवेलिंग धर्म है, चाहे उसको क्रिटिसाइज करना पड़े, आर्य समाज और आर्य समाज के मूवमेंट ने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, उसने उस क्षेत्र में काम किया है. ऑस्ट्रेलिया में भी ये शुरू हुआ था 24-25 साल पहले. फिजी के जो लोग थे, यहाँ से आर्य समाज फिजी गया, और फिजी के माध्यम से जब वहाँ कू हुआ
तो वहाँ जो फिजी इंडियंस रहते थे उन्होंने फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब हम मूवमेंट हुआ तो वहाँ से आर्य समाज ऑस्ट्रेलिया में आया। और गुड टू नो कि उन्होंने अपनी हिंदी को, क्योंकि हिंदी भाषा नहीं है, वो साथ साथ कल्चर भी लेके चलती है, उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। वहाँ पर ऑफकोर्स जो प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी की कहीं भी हो सकती है वो वहाँ पर भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी। जो लोकल एबॉरिजिनल हैं उनके बीच में काम करना, उनको डिग्निफाई करना, उनको जो आइडेंटिटी क्राइसिस दे दिया अंग्रेजों के अधिग्रहण ने वहाँ पर, उसको अपलिफ्ट करने वाले आर्य समाज के लोग। एबॉरिजिनल्स के बीच में काम करके उनको ये बताना कि आपके रूट्स किस तरह से इंडिया की कल्चर से, इंडिया की संस्कृति से जुड़ते हैं, उसको काम हमने किया। देश में रहने वाले जितने भी लोग आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन विच माइग्रेट्स, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो यहाँ की जो कल्चर है उसको साथ लेके जाना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान आर्य समाज का है। उसके साथ साथ सेकंड प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम इंडिया वुड बी कि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको अपनी कल्चर और कल्चर के रूट से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि आर्य समाज के पास सिद्धांत है वेद का, और वेद का मतलब बैक टू वेदास। ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म को वेस्टर्न थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा, उन्होंने सोचा है बैक टू वेदास जाकर कि हमारे मूल में, क्योंकि क्या होता है, मैं अपने घर को सुधारना चाहता हूँ लेकिन आपकी सोच से सुधारना चाहता हूँ, मैं कभी नहीं सुधार पाऊंगा। और अगर आप आज देखिए तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जितने भी रिफॉर्म कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी, और उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि भारत की संस्कृति क्या है। वेस्टर्न थिंकर से प्रभावित होकर नहीं, भारतीय सोच और भारत की संस्कृति क्या कहती है उस रिफॉर्म के बारे में, उसको लेकर वो चलते हैं। और यही काम प्रधानमंत्री से पूर्व हमारी आर्य समाज ने किया और वो 150 वर्ष तक लगातार करती रही। तो मैंने जैसे बताया कि माइग्रेट फैमिलीज का पहला प्रॉब्लम होता है कि उनको अपनी कल्चर से जुड़े रहने की इच्छा रहती है, साथ में आने वाली जो जनरेशन है उसको, तो उसमें लैंग्वेज, द कल्चर, अपने रूट्स, उनसे जोड़े रखने का काम आर्य समाज करता है। Again, social reform becomes different in each and every different country because geopolitical situation can be different, which means वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो चाहे ड्रग्स की हो, चाहे वो आइडेंटिटी क्राइसिस की हो, चाहे कल्चर शॉक की हो, क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको कल्चर शॉक लगता है। द सेकंड जनरेशन थिंक अबाउट कि मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है वो अलग है और मेरी जो कल्चर है वो अलग है, वो अपने आप को कहीं नहीं रोक पाता और उसको अपने और इसका जो अफेक्ट पड़ता है वो उसके अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप से पड़ता है। बिकॉज सेकंड जनरेशन थिंक दैट our culture is very low and their mainstream is high. उसको जोड़ने का काम हमारे संडे के सत्संग करते हैं, हमारे यूथ फोरम करते हैं, हम लगातार सम्मेलन करते हैं, हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जो भारत से भी जुड़ा हुआ है। और हम अभी भुवनेश जी से बात कर रहे थे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम अपनी यूथ एक्सचेंज करेंगे ताकि उनको लगे कि आर्य समाज इज नॉट लिमिटेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी ओनली एंड दिस इज द कोर ऑफ दिस सम्मेलन। हम उनको दिखा पाए, देख पाए कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको भी पता चले कि आर्य समाज इज नॉट लिमिटेड टू सिडनी और ऑस्ट्रेलिया और यूएस। इट इज एक्चुअली वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। मोर देन 15,000 institutions are working day and night for the welfare of humanity। और एक बात और जो स्वामी जी ने मुझे आदेश दिया है एकदम से कि यूनाइटेड नेशन और का जो चार्टर है, अर्थात जो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन चार्टर है, ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, अगर आप उसको देखें तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी जो इंस्पिरेशन है वो वेदास से आई, क्योंकि जो हमारा वैदिक फिलॉसफी कहती है वो मनुर्भव की बात करती है और उसके राइट्स क्या है। वी डोंट बिलीव इन बर्थ बेस्ड क्लास, वी बेस इन, हम उसको क्या कहते हैं, कर्म से कोई ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा। तो जो हमारे लॉजिक्स हैं, हमारा जो विजन है वो लॉजिक भी देता है और प्रोग्रेसिव भी होता है। तो इस दृष्टि से मेरे को लगता है कि जो आर्य समाज की मूवमेंट है वो मनुष्य के अधिकारों की बात करता है और उसके माध्यम से मनुष्य की सेवा करने की बात करता है। सो इट्स अ ह्यूमन राइट्स which is very much aligned with the Human Rights Charter, and I was actually presenting that in comparison कि देखा जाए कि वो जो आज एक ब्रॉडर लेवल पे एक्सेप्टेंस है जिस ह्यूमन राइट्स की, उसके रूट्स कहाँ पर है, उसके रूट्स हमारे वेदास में हैं। और अगर हम वहाँ पे इंस्पिरेशन लें देन वी गेट टू नो कि ह्यूमन राइट्स का चार्टर उनके पास आज है
लेकिन हमारे पास सदियों से था, है और रहेगा। और इसीलिए आर्य समाज क्योंकि उसको लेके साथ में चलता है, वेदास को लेके साथ में चलता है, इसलिए वो रेलिवेंट था, रेलिवेंट है और रेलिवेंट रहेगा। थैंक यू। Dearest friends, as you can see worldwide, the Arya Samaj is actively involved in tackling current day issues and burning challenges in our society. When Maharishi Dayanand Ji formed the Arya Samaj, as a revolutionary, he formed it to cut the shackles of the chains that bound our people, both spiritually and socially. And 150 years later, the Arya Samaj continues to tackle social issues on the ground, not only perform bhashans, which are important, but most importantly takes those bhashans and puts them into practice. The 10 principles designed by Maharishi Dayanand Ji are calls for us all to respond to the need of the hour and uplift our people worldwide. All the Arya Samajas internationally are tackling issues, like you heard, such as gender-based violence, environmental changes and climate change, issues regarding peacekeeping efforts. United Nations, which Yogesh Aryaji will speak about, is one avenue in which the Arya Samaj can literally and progressively be a voice of change and reason. Because the Arya Samaj and its philosophy is an antidote to the challenges we face in society today. Whether it be equality of our people, the upliftment of our women and children, and education of our women and children, Arya Samaj has been at the forefront in educating our women and children. Yet today, we still see global policies that are suppressing our women, that are suppressing the education of our children. And Arya Samaj is at the forefront in tackling that. We are proud to inform you that at this Mahasammelan, all the global leaders are committed to a strategic global initiative that looks towards the next 50 years, ensuring that the Arya Samaj contributes to certain specific initiatives that tackle the challenges we face. These are, as I said, environment and climate, social justice issues, issues facing all our peacekeeping efforts when it comes to individuals and countries that are facing war, that are facing where their governments are suppressing them in certain ways. We are there at the forefront for peacekeeping efforts. The Arya Samaj and its philosophy, as taught through the Satya Prakash by Maharishi Dayanand Ji 150 years ago, is as ever relevant and ever alive. It is a socially transforming movement that doesn't just focus on religious issues, but takes spirituality into the forefront, into the ground to uplift our people. One of the projects done in South Africa, for example, is Project Tripti. One thing that human beings cannot live without is water. Water is the elixir of life. So as part of our contribution to ensuring that those without access to water in the most rural of areas, the poorest of the poor, the most marginalized, the Arya Samaj sinks boreholes in this area without any cost associated to it, so that our communities that have no access to water can now flourish. Schools of which the children walk barefoot, not knowing where the next drink of water, the next drop of water is going to come from. They have now access to those water, and over 10 boreholes have been sunk in South Africa. Like that, other institutions worldwide outside of Bharat have committed to the cause of social upliftment, have committed to the cause of serving our people, the poorest of the poor. For the next 150 years, the Arya Samaj has a plan which will really shake the foundations of tomorrow. With that, I'll pass to Yogesh Ji, who will enlighten you on our endeavors for the United Nations and how Australia is making an impact in the Arya Samaj world. Thank you so much. Thank you. सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं, एक आप सब क्रिकेट फैंस होंगे और वेस्ट इंडीज़ की बात हो, आप मैं आपको थोड़ा जूम करेंगे, आपको पता चलेगा वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में गयाना, ट्रिनिडाड, सुरीनाम आता है और है, हाँ जी, सब टापू हैं।
तो ये सब या डच रूल के अंडर थे, या फ्रेंच के, और या ब्रिटिश रूल के। तो आप हिस्ट्री में जाएंगे, गयानीज हिस्ट्री में हमारे आर्य समाज के लीडर्स 6-6, 8-8, 10-10 साल वहाँ की इंडिपेंडेंस की फाइट के लिए जेल में रहे। ये आर्य समाज की हिस्ट्री। जिन देशों की हम बात करते हैं, चाहे वो फिजी हो, चाहे वो कीनिया हो, चाहे वो गयाना हो, ये ऐसे देश थे जहाँ शायद कोई स्कूल होते थे, लेकिन महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं था। और आर्य समाज ने ये कार्य किया 100 वर्ष पहले उन कंट्रीज में, अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर डच रूल, अंडर फ्रेंच रूल, revolutionized in that country to form, educate, provided access to education to them. निखिल साहब, आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न किसी को।